You are on mute, Mr. Banerjee. Sanjay, you need to unmute. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Am I audible? সঞ্জয় দা একটু জোরে হলে ভালো হয়। হ্যাঁ স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি জানি না whether other participants can hear you. Okay, but you can continue. জি, শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে আমাকে? আমি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আমাকে? জি, জি, Some অবশ্যই শোনা যাচ্ছে। participants from Bangladesh said that they can hear. শুনতে পাচ্ছি দাদা, শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে। Okay, please continue. Okay, sir. Please continue. Sir, I'm really thankful to Khan AP, Spare India, and Prism to giving me this opportunity to participate in this session. Time is running, so without delay, we should start. I think we have queries, questions. So let's start. Welcome, sir. Welcome, Tapas, sir. Tapas, sir, may we start? Yes, please. Sir, first of all, I would like to ask, or I would like to know, behalf of this group, why should one learn this life-saving technique, commonly known as CPR? What is the significance or importance of this life-saving technique, and why one should learn? So it's very important and very valid question for all of us. I'll try to demonstrate. I hope you can all see my hand. I like to demonstrate, and I have some picture here. So from the very early days when we are born, Dr. Mondol, আপনার ইকো হচ্ছে, মানে can you stop that? এক মিনিট এখন better? But echo is still there. I think some other phones are I think unmuted. Everyone in the audience, can we turn off? Audience except me. It should be better now. No. Is it better now? Yes, sir. It sounds better. Okay. Thank you. Okay, let's start. So what I was talking. Sir, বলুন. Go ahead. প্রশ্নটাকে আমি আবার করব? No, I got your question very correctly. If the audience has got the question, I am ready to answer. If you are all happy with this, I think we are running out of time. I got the questions very correctly. I could hear you well. Did the audience from everyone, you all could hear the question well? So I'm repeating the question anyway, so it is better. So basically the question is why we all need to learn this very important tool, what we call as CPR. The full form of CPR, as we call, is cardiopulmonary resuscitation. So at a time when our heart, which originally is designed to pump for us throughout our life, way before birth, as I am a cardiologist who look into fetal before birth, and then already our heart starts pumping. So heart is pumping all the time since heart has evolved way within the womb of mom, and that is pumping blood to the body, particularly the brain, which is the most important organ for us for day-to-day functioning. But unfortunately, this coordinated, synchronized pumping action of the heart may get deranged for some wrong reasons.
We don't need to know the details of that. What happens then, heart starts stopping, and you can see my heart, the finger here, it rather than nice pumping, it starts what you call as a fibrillating. So it's not pumping anymore. You can't hear? Someone is telling you can't hear? Yes, sir. I think the person who is telling there is no sound, can you turn on your, well, I think it is problem, it maybe your earphone, not so, with ours. So what happens rather than the synchronized pumping contraction, it started doing this movement. So heart is not anymore pumping. This can happen very suddenly and without any warning. Someone who is your colleague, someone who is working with you, someone who is walking with you in a park, someone is in an office or in a commute, without much warning, suddenly this event happens. So rather than pumping, the heart stops doing a regular pumping and does this movement. So when this happens during this time, which our heart, which so nicely was doing this contraction, stopped pumping blood to the body, particularly the brain. So if we see such a person falling down who was otherwise well, we'll go to the details, what else we need to do. But the point is, if we know this is happening, where blood is not pumped by our heart, so someone now need to pump the heart as if you are giving the pump for the heart. Now, what heart was doing, you, me, anyone who is a bystander, who is witnessing this event, needs to do this pumping, which we are doing with our hands. So this is the reason a commoner, a bystander who is there, whatever. So then who is not in the hospital? There is no skilled person. There is definitely no doctor, and anyone who is otherwise not trained and skilled to work in the hospital needs to do this. And that's why this is very, very important. Throughout the talk, we'll try to come to the point why it is important at your home, why it is important anywhere you're working, as 90% of cardiac arrests happen outside hospital. So if that's the scenario, that most cardiac arrests actually happening outside hospital, so then it is totally now dependent on the bystanders or who is witnessing the event, wherever this unfortunate victim is collapsing. So it is important. So it is now the onus, the responsibility goes on with the person who is witnessing this. Ask for more help, call for more people, and we'll through the discussion say why it is important for all the reasons to have help. But it is important to start, as this is a golden, not hour, golden minute, actually golden seconds. This is the time we don't need to look back. Unfortunately, we need to act on this time. We are doing this here, sitting, listening to each other and discussing, but the time it happens, then there is no point of questioning, hesitating and discussing. This is the time you have to start. And to do that, we are trying to learn. Like all emergency prepared background you are coming from, you prepare yourself that if this unfortunate event happened, and it is rare, that is in one way good, that is rare. So you don't go to practice every week or every month or never in your lifetime, but you have to prepare yourself enough that if it happens, you have to do it. I'll stop, go for the next question, and I think throughout the discussion, we'll get more and more questions. Thank you, sir, for your valuable answer. Sir, just I would like to say that there are lots of people, they are from Hindi belts and from Bengal. So I will talk in Hindi, English and Bengali also. So जो दर्शक यहाँ हैं, मैं संजय बनर्जी आपका स्वागत करता हूँ, और जो लोग हिंदी समझते हैं, आप अपना प्रश्न हिंदी में भी पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेरी है आप हिंदी में भी टाइप करके भेज सकते हैं, सर आपको हिंदी में भी बता सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी में पूछ सकते हैं। আমরা যারা বাঙালি বুঝি, বাংলা বুঝি, আমরা কিন্তু বাংলাতেও কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি, কোনো হেজিটেট করবেন না। তো আমরা নেক্সট প্রশ্ন আমরা যাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হার্ট অ্যাটাক এন্ড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।
sir. So I'll take this question. আমিও চেষ্টা করব বাংলা হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে বলতে। I know very well there are many people those who don't understand or speak Bengali for sure. So আর যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাদের হিন্দিতে অসুবিধা বলে আমি চেষ্টা করব সবসময় হিন্দিতে না বলতে। So let's take this question first in a way. This is a question again to be asked when you are sitting discussion, when you are in the hall, but not at the time when it is happening. Now, heart attack is a condition where, if you see actually my board in the back, you can see that's a picture diagram of the heart, which I show it to my patients and parents. And that when our heart is pumping, it needs also blood, like throughout our body during its action, during its work, it needs blood. And so that we get oxygen through that, we get other important nutrients through that. But heart also needs blood. So for any reason, the arteries supplying the heart muscles, then this is another good diagram to see that these are the arteries of the heart. If you see there, you can see this red color very nicely. This is the artery of the heart. This is supplying the heart muscles. For any reason, if these arteries gets narrowed, blocked, or any other problem that muscles do not get blood supply enough, we'll call it a heart attack. The way heart attack presents, we don't need to know these details. These are medical questions, but let us try to keep it simple. For any reason, heart doesn't get enough blood, giving problem in the chest, we call chest pain and heart attack. But this person still may be pumping blood normally. So there is no cardiac arrest on this patient. A small number of people with heart attack, if now suddenly having this movement due to less blood supply or electric problem in the heart. If you look at this diagram, again, this muscle, the picture, this model is this is like our building. The whole is building is the muscles, and the arterial supply is your plumbing, the water supply, and then comes the electrical supply. The electrical supply is also a problem sometimes in the heart. So for any reason though, regardless of the cause, if the heart stops pumping regularly and it does this movement, we'll call it a cardiac arrest. It's because now blood is not going to the body. So basic difference, heart attack is less blood supply to the heart. Only a small number of people with heart attack may go to cardiac arrest. But most people with heart attack, still heart is pumped well. You do not need to give CPR to these people. You can take them to hospital and other treatment needed. They need to fix the blood supply. But for regardless of the reason, either the heart attack or the electrical system, if there is a problem, then we need to do the CPR, as that is cardiac arrest, meaning heart is not pumping blood to the body. I think there are some questions coming on the audience. Mr. Banerjee, you can control, you can go in which order you choose. You can add the question order. I'm fine, but you please feel free to take those questions as you think. স্যার এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে, প্লিজ শো দ্য টার্মস অফ সিপিআর। Please show the প্রশ্ন রয়েছে, প্লিজ শো দ্য টার্ম অফ সিপিআর, টার্মস অফ সিপিআর। না আমি কথাটা I didn't understand the question. Can you make it clear? Yeah, maybe cardiopulmonary resuscitation, the abbreviated word it is CPR. So the full form of CPR is the question. What is the full form of CPR? Yeah. So yeah, that's as Mr. Dey has very nicely answered. It is an abbreviation form of cardiopulmonary resuscitation. Basically, when your heart, which was designed to pump for you, for us all the time, if it has stopped working for that temporary time, can we do something to resuscitate? You can try to use in English, Bengali, Hindi, different wording. The bottom line is heart is not working for you. Can anyone help the heart to work for the time, or try to do something for the heart? So that's called cardiopulmonary resuscitation. Newer terms coming. We are talking that breathing part is not so important.
chest compression possibly the most important. Some people use the term cardiocerebral resuscitation, meaning the purpose of the resuscitation and pumping is to give blood to the Sir, balloon. Go ahead. sir, may I ask another question? Next question. Please go ahead. Sir, what are the chances of survival in cardiac arrest? That's an excellent question. I said a little bit before. So we need to see that overall chance of survival in outside hospital cardiac arrest is very, very low if nothing being done. So around 10% of people only survives if on their own the heart started getting their rhythm back. But if the resuscitation is being done, then the chance of survival becomes actually 3 to 4 times. I'm still talking of outside hospital cardiac arrest. Inside hospital cardiac arrest, depending on the units, if it is in my unit, the chance of survival is much better. If it is somewhere in a very small district hospitals, then chance of survival still they're low for the same reason as the facilities there may not be good enough. So answer to the question is overall chance of survival in cardiac arrest unfortunately is very low if nothing is done then and there immediately next to the victim, whosoever is there starts the process. Okay, Thank you, sir. Sanjay da, so just Has two things for Dr. Mondal. One thing is that there was a request for you to be a bit louder. And number two is that Mr. Daya Shankar Misra, who asked that question about CPR, but as I interpreted, I thought that the question was framed in such a way, I thought that it was, he wanted to ask about the full form of CPR, but he explained that it is CPR is being done. So the process part, I have written, the process part will be explained soon. So, Okay. yeah. Can Okay. you, Mr. Banerjee, can you kindly unmute me on the other one, and then I can mute on this computer and unmute on other one. Just see that I have joined from 2 computers, and if that makes me better heard, যদি হ্যাঁ আমার শুনতে আমাকে শোনান, আপনি অন্যটাকে আমাকে unmute করুন এখন. I know it's not allowing me to unmute myself. তাপস মণ্ডল একটা কম্পিউটার থেকেই আছেন। আরেকবার চেক করুন। আমরা চেক করেই বলছি যে একটা কম্পিউটার থেকেই আপনাকে ইয়ে করা হয়েছে। ও অ্যাকচুয়ালি আমি না, যখন আপনি চেক করলেন না অনিরুদ্ধ দা, অনিরুদ্ধ দা, হ্যাঁ আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, বলছি যে আমি অনেকগুলো আমি কোশ্চেন শুনতে এখানে পাচ্ছি। প্রশ্ন অনেকেরই দেখছি যে আমাদের যে সেশনটা এটা বাংলা বা হিন্দি হলে ভালো হতো। না, বাংলা হলে ন্যাশনাল লেভেলে এখানে অনেকেই আছেন, so there are many people who cannot follow Bangla, so Hindi, if it is in Hindi, then people will be able to follow. So some people from Bangladesh, they said that if it is Bangla, Hindi and English, so that composition can be taken. ওকে স্যার, তাহলে কি আমি স্যার হিন্দি বলবো? হ্যাঁ, হিন্দিতে বলতে পারেন। ওকে স্যার, ওকে। তারপর স্যার আপনি হিন্দি বুঝতে পারবেন তো? ঠিক আছে, আপনি বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হিন্দিতে আনসার করতে পারবো, অসুবিধা নেই, আপনি বলুন। আমি প্রশ্নগুলো করছি, তারপর আমি আবার করছি যে আপনি হিন্দিতেই না স্যার, আমি প্রশ্নটা করে তারপরে আমি হিন্দিতে বলছি যে what are the basic steps of CPR and why it is important to act quickly in a cardiac emergency. जो दर्शक हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं
मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न मैंने पूछा है कि बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं और इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। अगर हमारे वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं जो सीपीआर करने के लिए आवश्यक है, और अगर हम ये बेसिक स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे और वो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे किसी इमरजेंसी में। देखिए, ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है, अगर आप इसे अच्छी तरह से सीखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की जान बचा सकते हैं। और सर, तो आप जानते हैं कि डॉक्टर तापस सर ये लंबे समय से इस तरह के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, और इनको, तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली आप बताएं कि इसको व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ सीपीआर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट क्विकली इन अ कार्डियक इमरजेंसी। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें जानना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ऐसे सिर्फ बोलने से स्टेप्स का सीपीआर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए जो वीडियो हमने दिखाया, अभी वीडियो भेजा भी, वो देखना जरूरी है। क्योंकि अभी मैं कोशिश करूँ ये फ्लोर में जाके दिखाना चाहता हूँ, तो आपको देखना प्रॉब्लम होगा, सुनना प्रॉब्लम होगा, वीडियो का प्रॉब्लम होगा। तो स्टेप्स का बारे सिर्फ हाइपोथेटिकली ये बोलने से ये रहना मुश्किल ही होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग सारी थोड़ा, मैं सोचा वीडियो देखा होगा, वीडियो नहीं देखा तो बाद में देखना। मैं कोशिश करता हूँ बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ बोलने से, मैं बोलने से आपको ये पता नहीं चलेगा, ये ठीक तरह से आपको नहीं किया जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एनी हाउ, ये तो दुनिया में बहुत पहले से ही पता था। कोई जिन्हें सिर्फ सुनने में ये पता नहीं होता, ये देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसलिए हम प्रश्न यहाँ पे दिखाया, फिर मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। बेसिक आइडिया तो यही है, जो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, आपको पंप करना पड़ेगा। कैसे करना है? हमारा ये दोनों हाथ को हम एक साथ लेंगे। आप देखो, साइड से देख सकते हो, हम इसको साइड में भी दिखाए, तो एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, ऐसे करके आपका जब होगा, हमारा सारी अपना जो वेट, वो इसी का, ये जो पाम, लेफ्ट पाम, या हम लोग जो राइट हैंडेड पर्सन, उसका लेफ्ट पाम का ऊपर से हमारा सारी जो वेट है वो हम विक्टिम का ऊपर देते रहेंगे, ऐसे चेस्ट कंप्रेस करते रहेंगे। हम उसको ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ए मिनट ऐसे दबाते रहेंगे। जैसे ये आपको अभी फिजियोलॉजी तो ऐसी है, जब आप ये कर रहे हो, हार्ट खुद पंप कर रहा था, नहीं कर रहा है, तो आप उनको हार्ट को दबा रहे हो, जैसे ब्लड चलते रहेगा। ये रहेगा चेस्ट कंप्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आप पहले और दूसरी स्लाइड में हम दिखाया, वीडियो में भी दिखाया, सबसे पहले एक व्यक्ति जो आपका साथ था, वो घूम रहा था, काम कर रहा था, वो शायद खेल कूद कर रहा था, बहुत एक्टिव गाय था, लेकिन सडनली वो ऐसे जब गिर गया, ऐसे जमीन पे गिर गया, उसका दूसरा कुछ भी हो सकता है जो इतना सीरियस नहीं है। उसका हो सकता है सिर्फ थोड़ा सा दिल ऐसे कुछ हुआ, उसका दिमाग में कुछ चक्कर आ गया, तो उसको जाके साथ सबसे पहले पूछना होता है, क्या हुआ, आप ठीक हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप गिर गया क्यों? जो व्यक्ति का, जो आदमी इसी टाइम हाथ ऐसे तो खोल के ही हो, या ऐसे मूव करके बताता है ठीक हूँ, ऐसे मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ नहीं। कार्डियक अरेस्ट जिनका हुआ, उनका बात करने का कोई स्पीच ऐसे कुछ होगा नहीं, उनका मूव करने का भी ऐसे कुछ कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनका सारा शरीर में ब्लड चलना बंद हो गया, तो उनका मूवमेंट बंद होगा, उनका कॉन्शसनेस नहीं होगा, वो बात नहीं कर सकता है। तो तब आपको देखना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा सा उनको ऐसे करके, इसको हाथ में ऐसे ऐसे जो चेस्ट का मिडिल पार्ट, वहाँ पे थोड़ा पेनफुल स्टिमुलाई देके वो कोशिश करना है। कभी कभी हो सकता है आपको बात उनको नहीं जाता है, आपको बात उनको सुनने में नहीं आता है, इसीलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो रिस्पॉन्ड करके वो मूव कर जाता है। तो अगेन, जो व्यक्ति से रिस्पॉन्ड कर लेगा, रिस्पॉन्स का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करेगा उनको चेस्ट कंप्रेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन जो आदमी इसके बाद भी जो इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो साथ साथ ही आपको ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम आपको पता है, और दूसरी कोई आपका साथ आ जाए, दूसरी किसी को हेल्प आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेला ये करना मुश्किल है।
और दूसरी किसी को बुलाना भी, और तीसरी किसी को बुलाना, हॉस्पिटल बुलाना, फोन करना, ये सारी चीज के लिए आप साथ साथ किसी को उसी टाइम हेल्प लेना भी जरूरत है। तो मैं बाकी जैसे करना जो स्टेप्स है यहाँ पे, इसलिए मैं अभी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जब ये बात हो जाए मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं सोच रहा था इसी सारी प्रोग्राम में ऐसे लोकलाइज जहाँ पे ये हो रहा है, आपका साथ मैनिक्विन दे के ये करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बोलने से सीपीआर ऐसे सीखना असंभव है, अब आपको मिनिमम वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। प्लीज Sir, मिस्टर, Thank you, sir. Dr. Mondal, is it possible for you to see the chat box? Because कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछना चाहते हैं, जैसे कि एक सवाल ऐसा है कि एईडी मशीन अवेलेबल है फॉर बेटर सीपीआर। अब एईडी मशीन क्या होता है, हम मतलब यहाँ पे अगर 61 पार्टिसिपेंट्स है तो सभी को पता नहीं चलेगा, सभी को पता नहीं होगा। तो एईडी मशीन के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। और जरूर कुछ लोगों का सवाल यह है कितना बार दबाना है क्या, तो वो तो ठीक है, आप ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन लेते तो अच्छा रहता। हाँ चलो, एडी के बारे पहले बता लेते हैं, इसके बाद हम कंप्रेशन रेट के बारे भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। तो सबसे पहले एडी के बारे बताएं। आप ये देख सकते हो मेरा पीछे जो है, यहाँ पे एक एडी ट्रेनिंग किट है। दिस इज एन एडी, सो बेसिकली दिस इज अ मशीन, सो दिस इज वेरी स्मॉल। आप देख सकते हो ये थोड़ा पोर्टेबल मशीन जैसा है, इसका वेट भी बहुत कम है, आप खुद देखो, ऐसे एक अंगुली में ले सकते हैं। या प्रॉब्लम जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ईडी का बारे, आपको कभी दौड़ने का जरूरत हो, दौड़ना तो अच्छा ही रहता है, लेकिन दौड़ने से पहले आपको चलना जरूरत है। ऐसे कोई आदमी किसी को अभी तक हुआ नहीं जो कभी चला नहीं, दौड़ने सीखा पहले, तो पहले सीपीआर करना ही पड़ेगा। इवन आप जब एईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका पास एईडी हो तो एईडी का इस्तेमाल भी कर रहे हो, जैसे हम करते हैं हॉस्पिटल में, ये तो ट्रेनिंग किट है। लेकिन हमारी सारी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल कॉरिडोर में, यहाँ पे जो ड्राइव ये जो सारी कार कंपनीज का है या कोई मॉल हो, वहाँ पे एईडी होता है, लेकिन इंडिया पे होता नहीं। तो एईडी का कॉस्ट है। सीपीआर जब आप यूज कर रहे हो, आपका नॉलेज सिर्फ आपका दिमाग में हो, आपको जानकारी हो, आपका अपना हाथ से आप कर रहे हो सीपीआर, जिसका जरूरत अभी भी है, सबसे पहले कर रहा है। एईडी बुलाने में टाइम लगता है, एईडी मिलने में टाइम लगता है, एईडी को ऑन करने में टाइम लगता है, एईडी हो तो लेकिन आपका घर में तो एईडी नहीं होगा, आप जहां जहां पे घूम रहे हो एईडी नहीं होता। शायद अभी हमारा जो लोग जाते हैं, आपका जितना बड़ा स्टेशन, आप जिस शहर से हो, लेकिन कलकत्ता मेरा इंटरेस्ट था, हावड़ा स्टेशन में मैं एक्चुअली डोनेट करने चाहता था, लेकिन वहाँ का जो आईएस के साथ कांटेक्ट हुआ, फिर बाद में हुआ, और दूसरा जो सेंट जॉन एम्बुलेंस में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जाओ हावड़ा स्टेशन में भी एईडी मिलेगा नहीं, तो एक दिन में हावड़ा स्टेशन में 1 मिलियन, सियालदह स्टेशन में अनदर 1.5 मिलियन लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन एडी वहां पे मिलेगा नहीं है। तो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अभी जिस दुनिया में एडी घर घर में नहीं होता है, बड़ा स्टेशन में भी नहीं होता है, काफी स्टेडियम में भी नहीं होता है, एयरपोर्ट में आजकल होता है, जरूर होता है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल लॉज का बड़े, इसीलिए एयरपोर्ट में होता है। लेकिन तो ये आंसर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एडी इज कंप्लीटली थियोरेटिकल थिंग फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, बट ये आपको लेना पड़ेगा। आपको लागे आप सीपीआर सीखा, आपको घर में सिखाया, आपको क्लब में सिखाया, आपको स्टेडियम में सिखाया, तो आप खुद एईडी मांगोगे और एईडी आप खरीदोगे, तो तभी आपको एईडी का बड़े जान पहचान चलेगा। एईडी इज वेरी वेरी हेल्पफुल, एईडी इज नीडेड, लेकिन ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एईडी यूज करने से पहले आपको सीपीआर सीखना पड़ेगा, बाकी लोगों को सीपीआर के बारे बोलना पड़ेगा। सीपीआर का सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन तब भी होता है जो लोग एईडी यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन एईडी यूज आल्सो वी कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन। तो फिर हमारी स्टेटमेंट ये है, सीपीआर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो वहां पे खड़ा है, जो विटनेस कर रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति गिर गया, उनको चेस्ट कंप्रेशन देने का जो हैबिट, वो आपको शुरू करना पड़ना है। इसके बारे आपको और बहुत कुछ जानकारी के लिए और जानना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये करना ही पड़े। तो फिर कमिंग बैक टू एडी, एडी एक्चुअली ऑटोमेटिक, एज द नेम सजेस्ट, एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड
एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। हमारा हॉस्पिटल में जो डिफिब्रिलेटर पहले होता था, जो लोग आप मूवी में देखे होंगे पहले, वो डिफिब्रिलेटर बड़ा होता है, वो ऐसे कैरी करना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो पुराना डिफिब्रिलेटर का जो है, वो बेटर क्वालिटी भी है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है, वो आपको बोलेगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं जे आप अभी उसको शॉक दो। आप एज ए डॉक्टर हो, स्किल्ड लोग हो, वो आपको देख के जो वहाँ पर रिदम होता है, और रिदम स्ट्रिप देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। वो ऑर्डिनरी जो लोग हैं, जो नॉन मेडिकल पर्सनल है, वो लोग वो मशीन में यूज नहीं कर सकता था शॉक। लेकिन ये जो नया मशीन है, ये मशीन जो कैरी करता है, वो मशीन में ऐसे देगा, मशीन बोलते रहेगा यहाँ पे जो रिदम है ये ठीक नहीं है, ये अभी अभी इसको दबाओ, इसको अभी शॉक दो, तो तब आप यूज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है ये एईडी मशीन का। तो इसीलिए एईडी मशीन का हेल्थ बहुत ही जरूरत होता है। लेकिन एईडी मशीन होने से पहले आपको ये भी है, इसका तो कॉस्ट भी है, ये तो फ्री नहीं है। होपफुली ये भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमारा हमारा यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी फैकल्टी हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा स्मॉलर वर्जन, थोड़ा सा कम ऐसे एक्सपेंसिव हो सकता है कि नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कभी कभी जो कार होता है, कार का साथ एडी हो जाए, लेकिन हर कार बिकेगा कोई दिन जहाँ पे एक एडी हो। तो लेकिन अभी तक ये फैसिलिटीज है नहीं। दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन था पहले और किसी का, ये चेस्ट कंप्रेशन रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन का जो रेट होता है, इट्स क्लोज टू 100 times per minute, roughly it is roughly। हम लोग कोई वीडियो में पहले दिखाया था, जो अपना जो कोई म्यूजिक का हमिंग करते हो, जैसे अपना कुछ फोक सॉन्ग हो या कोई क्लासिकल सॉन्ग्स हो, हमारा वीडियो में वो दिखाया, जैसे अपना दिमाग में हो। अदरवाइज आप ऐसे अपने दिमाग पे रखो 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, that goes roughly a rate of 100 beats per minute। You carry on doing the most difficult part। ये करने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है, जो गिर गया जो व्यक्ति, वो विक्टिम जब स्ट्रांग होता है और आप जैसे रिससिटेट कर रहे हो, ये थोड़ा थिन बिल्ट है, तो उसको ये चेस्ट दबाना मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा चेस्ट को देखो ऐसे, जैसे ये हमारा हार्ट में, मेरा हाथ में देखो, जो हार्ट है अंदर, तो इसको दबाने में कम से कम हाफ ऑफ द चेस्ट विथ, हमारा जो चेस्ट विथ है, इसको हाफ दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये चेस्ट है, तो इसको हार्ट है इसका अंदर, तो आपको इसको दबा के हाफ साइज करना है। तो ये विक्टिम जब ज्यादा स्ट्रांग हो, रोबस्ट हो, कोई ऐसे मस्कुलर पर्सन हो, और रिससिटेटेड पर्सन जो है वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग ना हो, उसका ज्यादा टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको दूसरी किसी का हेल्प मदद लेना बहुत जरूरत होता है। आप दूसरी किसी को, बाकी लोगों को बुलाओ, उनको इतना जानकारी ना भी हो, वो आपको देख के भी वो कर सके, क्योंकि आप उनको बोल रहे हो ऐसे करो, कभी कभी इसका भी जरूरत होता है। लेकिन सबसे आपका ये क्वेश्चन का आंसर है 100 बीट्स पर मिनट। अनफॉर्चुनेटली ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब कोई ना हो, ना आपका साथ आए, आपका कोई साथ दे, आपको हॉस्पिटल लेने के लिए जरूरत होगा, लेकिन साथ में कोई ना हो तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो सकता है इसको आप कुछ हेल्प करें। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन आप जा सकते हो। Okay, sir. अच्छा, चैट मैसेज मिस्टर डे, यू रिक्वेस्टेड मी, तो कोई कोई अभी भी लिखते हैं साउंड के लिए प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज प्लीज चेक करो आपका माइक। आई थिंक यहाँ का माइक का प्रॉब्लम नहीं है। Sir, they'll be able to open their mics now. Okay, perfect, please carry on। Can ask if there are new questions, please। Mr. Vikas Roth, Yes, Mr. sir. Vikas Roth, he has asked that, may I ask my question now? I said that actually सभी को बोला जा रहा है कि अगर आप हैंड रेज करें तो अच्छा होगा, तो आपका अनम्यूट करने में हम लोगों को सुविधा होगा जो को होस्ट है। ओके, मिस्टर विकास रॉथ, या प्लीज। So good evening, sir. Dr. Mondal, actually, I would like to share that I don't have any medical training or expertise. Of course, I belong to a different field, but by God's grace, I have been able to apply CPR successfully in one case, and that too without precision.
And also another technique, which also I learned from a social media platform, which a doctor trained the society, that whenever we see accident patients lying almost dead, so what we can do, we can just lift their legs a little higher so that the blood flows towards the head. And that too also I have applied in one case, and it has worked wonders. So in both cases, it was successful, and life they could regain the life. But the thing is that, sir, sometimes we are confused exactly when to decide, how to decide that this is a case of CPR, and the other thing is, what about the lifting of legs? Thank So you. can you repeat the last word? Sorry, sir. Can you repeat the very last one? What is the? Yeah. Actually, I am told that as a doctor said in one video, that the blood flow stops to the head, and there is a risk of getting brain dead very soon, within minutes. So to stop that, we have some surplus blood in our legs, so we can lift the No, that's legs. okay. I got that part. Okay. I think that's the Sorry? problem of sometimes. You are okay. I got the question. I got it. Yeah. I'm So just please, can you please understand that. enlighten us? I Yeah. think something you said we couldn't understand, but that's the difficulty. Okay, go ahead. No, I got it. Okay. So it's very right that what you do as CPR is very important when there is a true cardiac arrest happen, meaning the heart is not beating. Lifting, सिर्फ पैर को ऐसे ऊपर करने का जो एडवांटेज है, जो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ उसके लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। सब लोग ये हैं जिसको हार्ट स्टिल भी पंप कर रहा है, एक चीज बोलता है सिंपल फेंटिंग, और हमारी मेडिकल परिभाषा में हम कहते हैं वेसोवेगल अटैक। जब कोई आदमी खड़ा हो जाता है, जब ठीक से हमारा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो, बहुत काम कर लिया, स्वेटिंग हो रहा है, इसी टाइम पे आप सडनली खड़ा होने की कोशिश करो। कोई आदमी का ऐसे कोई जो हम बोलते हैं ब्लड ऑपरेशन हो रहा है, ब्लड देख रहा है, कोई बोलता है वो हमें देखने में ठीक नहीं होता है। आप कभी बस में चढ़ रहे हो, आपका थोड़ा लगता है पेट जैसे थोड़ा सा डिस्टेंशन फीलिंग हो रहा है, तो आप गिर जाते हो। इसको हम कहते हैं सिंपल फेंटिंग। इसमें हार्ट कार्डियक, इसका कार्डियक अरेस्ट हुआ नहीं, फॉर ब्रीफ टाइम उसका ब्लड, उसमें भी ब्रेन में ब्लड कम जाता है, लकीली उसका हार्ट अपने आप बीट करने लगता है। उसी आदमी को डेफिनेटली सिर्फ पैर को पीछे से ऊपर करो तो दिमाग में जो ब्लड आए उसका हेल्प होता है। उसी टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो जाना। उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे आप गिर गया तो सब लोगों को लगता है रास्ते में गिर गया, चलो भाई खड़ा हो जाता है, लोग क्या सोचेगा, तो आप उठने की कोशिश करोगे, तो वही दिमाग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी दिमाग में ब्लड कम रहा है। तो सिर्फ सो जाओ तो ठीक है, उसका थोड़ा साइड करके सो जाओ, सुलाओ तो ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, जे हम पहले बात कर लिया था, ये वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं, वहाँ इसमें हम अच्छी तरह से दिखाया, जब सिंपल फेंटिंग हो, जिसमें हार्ट का इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, फिर भी गिर गया, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, हाथ ऐसे न रखे और कुछ बोल के उसको पता चलेगा जो वो बिल्कुल टोटली अनकॉन्शियस हुआ नहीं, उसका थोड़ा चक्कर आ गया था। इसी व्यक्ति को सिर्फ पैर ऊपर करने से फायदा होगा। जिनका पूरा कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनका सिर्फ पैर ऊंचा करने में फायदा नहीं होगा। आप करो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप उसको को भी ऐसे करो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, जैसे आप पहले बताया जी, बाकी लोगों को आपको पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं है। लेकिन सिर्फ वही करने में, ट्रू कार्डियक अरेस्ट में शायद इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन पैर ऐसे ऊपर करने में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्टली। सेकेंडली, मोस्ट टाइम्स एक्चुअली सिंपल फेंटिंग बहुत कॉमन है। सिंपल फेंटिंग आप लोगों को, जिसमें जो लोग आज है यहाँ पे, आज 60 लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, आपको भी कभी बुखार हुआ, कभी तबीयत ठीक नहीं हुआ, आप बिस्तर से ऊपर होने के देखो आपका सिर में चक्कर है, शायद मेरा हुआ,
मैं मेरा एक्चुअली एक बार मेरा एक छोटा बाइक एक्सीडेंट हुआ, मुझे अच्छी तरह से पता है जब ही मेरा सीवियर पेन हुआ, थोड़ा सा फ्रैक्चर आया एक टोज में, साथ साथ सबसे पहले यह है कि मेरा इंजरी का वजह नहीं, मेरा दिमाग चक्कर आ गया। ये कभी कभी वार्म जो हॉट वाटर में जो आप बाथ लेते हो उसमें भी हमेशा होता है। तो ये इतना सीरियस नहीं है, लेकिन इसी टाइम पे भी आपको लेट जाना सबसे अच्छा है, और उसी टाइम दूसरी कोई आके उसको पैर को थोड़ा सा ऊंचा करे तो अच्छा है, नहीं तो उसको साइड करके सुलाओ, लेकिन खड़ा होने की कोशिश मत करना। तो आप जो क्वेश्चन किया शायद ये क्लियर हुआ, जो ऐसे पैर ऊंचा करने का जो तरीका आपने सीखा इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ट्रू कार्डियक अरेस्ट जिसका हुआ शायद सिर्फ पैर ऊंचा करने में उसका ये शायद वापस नहीं आएगा। डॉक्टर मंडल, दयाशंकर मिश्र बोल के कोई है जिनका सवाल है। दयाशंकर जी, अगर आप उसको अनम्यूट करेंगे और अपना सवाल आप खुद पूछेंगे तो अच्छा होगा। तो उनका कहना ये है कि और क्या सीपीआर से हेल्प नहीं होता, होने के बाद माउथ टू माउथ भी दिया जाता है। तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सा लोग ऐसे हैं जो जिसको जो जानते हैं माउथ टू माउथ, लेकिन माउथ टू माउथ में कुछ प्रॉब्लम भी आता हुआ। तो आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। जरूर। ये सवाल तो सिर्फ सवाल ही नहीं, ये मुझे ही बोलना था। अम, देखो, हम लोग सभी सीख रहे हैं, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसे सबसे सिंपलेस्ट चीज आपको बताएं, लेकिन दुनिया में रिससिटेशन का बड़े बहुत एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट लोग बहुत कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे 10 साल पहले सारी सीपीआर में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया जाता था, सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन शायद इतना अच्छा होगा नहीं ऐसे सोचता था, क्योंकि हमारा हार्ट तो काम नहीं कर रहा है लेकिन सांस भी नहीं चल रहा है। तो लोग हमेशा सोचता था चेस्ट कंप्रेशन का साथ साथ शायद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना भी इतनी जरूरी है। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग ये समझ रहे हैं, जैसे एरिजोना यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टडी हुआ, एक तरफ सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन, दूसरी तरफ चेस्ट कंप्रेशन, जो ट्रेडिशनल टीचिंग था माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी चल रहा है। स्किल लोग, एक्सपीरियंस लोग ही दे रहा है, ऐसे जो लोग जिनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है अचानक देने लगा, ऐसे नहीं। दोनों ग्रुप में एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट लोग दे रहा है। तो उन लोगों का फर्स्ट स्टडी में आया 10 साल 12 साल पहले, उनका स्टडी का पब्लिकेशन भी जब आया, तो अभी लगा जो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन में जितनी लोग अच्छा कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं हो रहा है। तो उसका बाद जब मैंने भी शुरू किया जी, ये लोगों से, जैसे मिस्टर बनर्जी ने देखा बाकी जगह में, इंडिया में जब हम पहले शुरू किया तब हम सोच रहे थे, लेकिन उसका बाद जब अभी कोविड आया तब और किसी को बोलने का जरूरत नहीं हुआ। जो मिस्टर दे अभी हिंट कर रहे हैं, जो आप कोई व्यक्ति जो जिसको अनजाने में जो उसके कुछ हुआ आपको पता नहीं, आप देखो उसका मुख से कुछ जो गजला कहते हैं, कुछ सिक्रीशंस हो रहा है, आपको साथ साथ लगेगा इसको मुख में अपना मुख लगाना पॉसिबल नहीं है, आप चाहोगे नहीं। लेकिन उसी से प्रॉब्लम क्या हुआ, आप तो उनको चेस्ट कंप्रेशन में नहीं दे रहे, तो डर गया, तो आप उसका पास में नहीं जा रहे हो, उसको ये मुख से कुछ गिरना देख के शायद ब्लीडिंग हो। कोई कोई ये भी पूछता है पेशेंट का बर्न हुआ, पेशेंट का कुछ यहाँ पे इंजरी हुआ, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ से सिक्रीशंस हो रहा है, एक तरीका का वो प्रॉब्लम। और दूसरी तरीका से आप ये व्यक्ति को जानकारी नहीं हो, शायद इनका कोविड हो। कोविड तो अभी थोड़ा इतना सीरियस नहीं, लेकिन कोविड टाइम में माउथ टू माउथ के अब तो उसको पास में नहीं जा रहे हो, लेकिन उसी टाइम पता चला चेस्ट कंप्रेशन ओनली सीपीआर में भी इतनी हमारा आउटकम अच्छा हो रहा है, तो क्यों उसको सिर्फ माउथ टू माउथ का देने के लिए कोशिश करके आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ दोनों देते थे, हम बोलते थे चेस्ट कंप्रेशन देते रहो, लेकिन जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दो इसको बंद करो, तो आपको लगे चेस्ट कंप्रेशन ही इतना जरूरी है। जैसे आप लोग, मैं हमारा इस वीडियो में भी देखा, आप लोग देखोगे एरिक्सन जैसे जो आदमी इतनी
एथलेटिक पर्सन सॉकर फील्ड में गिर रहा है, उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देके कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ ही चेस्ट कंप्रेशन देना होता है। तो ऐसे जो एथलेटिक फील्ड में एक्टिवली जो गिर गया, उसका माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी हम काफी क्वेश्चन का इसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चा हो, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप उसी फील्ड में नहीं होगे। आजकल इवन बांग्लादेश एंड मोस्ट पार्ट्स में जो डिलीवरी हो रहा है घर में नहीं हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जो बच्चा जस्ट जन्म हुआ, उसी बच्चे को फास्ट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इज द, इट इज नॉट माउथ। इन द हॉस्पिटल तो आप माउथ से नहीं देते हैं, हम मशीन से, हमारा पाम से, हमारा जो अम्बू बैग से देते हैं। लेकिन बात ये है, उनको ब्रीदिंग देना सबसे जरूरी है, तभी उनका फायदा होगा। साथ साथ चेस्ट कंप्रेशन शुरू करोगे, लेकिन ये ब्रीदिंग का फायदा उसी पे है जिसका ड्राउनिंग हुआ, जिसका चोकिंग है, उसको चेस्ट ऐसे कुछ दबा के जैसे मैन्यूवर करते, वो चीज इसमें कंफ्यूज करने का नहीं। ये आज डिस्कशन का फायदा यही है, जब आपको डाउट हो, आप शुरू करो चेस्ट कंप्रेशन, आप दूसरी किसी को हेल्प लो, साथ में हॉस्पिटल से। जैसे ये बात अभी भी सारी इंडिया में भी जो ईएमएस सर्विस कहता है, जो डेवलप्ड कंट्री में है, अभी तरफ इंडिया बांग्लादेश में इतनी एम्बुलेंस सर्विस पॉपुलर नहीं हुआ। और मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा पिताजी अभी नहीं है, लेकिन जब मेरा पिताजी को एक हॉस्पिटल से ले रहा था, वो एम्बुलेंस का जो सर्विस था, उनसे मैं बात कर रहा हूँ एम्बुलेंस में क्या चीज़ है, वो एम्बुलेंस में कुछ नहीं था, ना ऑक्सीजन, ना आपको एडी का बात, ना। तो मैं उनको ये मेरा इंटरेस्ट से पूछा, आप लोग कुछ कर सकते हो यदि जब किसी आदमी को आप ले रहा हो एक टाउन से, आपका टाउन जहाँ पे हो, 2-3 घंटे में आप आ रहे हो दूसरे हॉस्पिटल में, आप लोग कुछ कर सकते हो एम्बुलेंस में? बोला नहीं, हमें तो कुछ ट्रेनिंग नहीं। हम तो, मैं पूछा सीपीआर के बारे में आप कभी सुना नहीं, आप चेस्ट कंप्रेशन का भी ट्रेनिंग दिया नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, इवन हमारी सारी जो आपका आसपास में जो एम्बुलेंस सर्विस है, वहां पे भी उनको सारी फैसिलिटीज नहीं है। ये होगा जब जब आ रहेगा जिसका पास वो चीज होगा, तब तो आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही है। सिर्फ माउथ टू माउथ नहीं, हम लोग जब डॉक्टर या कोई ईएमएस कनाडा पे होता है, इंग्लैंड में होता है, वो तो ट्यूब डाल देंगे, वो तो ट्यूब मुख में डालेंगे। जिसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ, इमीडिएट चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद आपका एईजी का भी इस्तेमाल किया। हमारी छोटा बच्चे लोग जब आते हैं हॉस्पिटल में, बाहर फील्ड में ऐसे गिर गया, खेल रहा था, कुछ हुआ, तो उसको तो इंट्यूबेट करके वो लेके आता है। तो लेकिन आप तो कर नहीं पाओगे। मैं क्या चाहता हूँ, इस डिस्कशन का अंतिम हमारा ये इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हो। ये जो 90% कार्डियक अरेस्ट रास्ते में हुआ, फील्ड में हुआ, घर पे हुआ, जहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई एम्बुलेंस, स्किल्ड एम्बुलेंस, मान लो एम्बुलेंस में लोग को सब पता है, लेकिन वो तो है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसी टाइम आप जो कर रहे हो, उसी में ही वो व्यक्ति का शायद जान बचेगा। साथ साथ तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका और क्या करोगे, डिटेल्स क्या करोगे, ये डिस्कशन यहाँ पे फायदा नहीं। गोइंग बैक टू द पॉइंट, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का रोल था, रोल है, लेकिन जब डाउट हो, सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करो, चेस्ट कंप्रेशन करते रहोगे। दूसरी कोई है जिसका इसका बारे पता है, जिसका दो आदमी हो या दो से ज्यादा आदमी हो, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का फायदा हो सकता है। लेकिन कोई टाइम होता है, चेस्ट कंप्रेशन बंद करो, चेस्ट कंप्रेशन ना करो, ये करने में नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं एक्चुअली देख रहा हूँ। सर मैं कुछ मुझे लगा बोलूं किसी सर? का हाथ उठा हुआ है। सर मैं कुछ बोलूं शी सर? हैज रेज्ड हैंड। हाँ या प्लीज। बताइए। सर मैं दयाशंकर मिश्रा हूँ, जमशेदपुर से। हम्म, और मैं वही आपका सीपीआर को सुन रहा था अभी। डॉक्टर साहब बता रहे थे, अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको अभी तक मैंने या तो पढ़ा है या फिर पढ़ाया है उसमें, तो वो जहाँ तक बताया जाता है, अब आप मान लो कि 100 टाइम लगातार आप उसको चेस्ट को पुल करोगे, उतना टाइम उसमें। तो इसका कुछ टर्म्स कंडीशन जैसे हम लोग बताते हैं, उसके हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि 20 सेकेंड में 30 टाइम हम लोग चेस्ट को पुल करते हैं। 20 सेकेंड 30 टाइम, ऐसे ऐसे करके हम लोग
3 बैच यूज करते हैं, 30 का 3 बैच यूज करते हैं। और ये करने के बाद हम लोग को जब लगता है कि अगर हम चेस्ट पुश करने के बाद हम देख रहे हैं लगातार कि कुछ इम्प्रूव नहीं आ रहा है, तब हम लोग उसको माउथ टू माउथ भी क्लीन करने, क्योंकि ऐसा केस माने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में भी आ जाता है। कभी आप देखोगे पानी में डूब गया है तो उसका भी। और जो सीपीआर का मेन, मेरे ख्याल से जो सीपीआर का मेन मकसद है कि मैं कृत्रिम सांस को उसके अंदर तक पहुंचाना, कि बाकी सांस का जो नली है वो खुल जाए, वो खोलने का मेन प्रयास होता है। तो माउथ से ज्यादा ये बेहतर तरीके से आप जो इम्प्रोवाइज एयर आप उसके माउथ में दे रहे हो, और कहीं भी थोड़ा हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो खुलने में शायद ज्यादा आसानी होता है। वैसे डॉक्टर साहब जो बताया सही बताया, लेकिन मुझे जहां तक अपना पॉइंट लगा कि चूंकि हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जमशेदपुर रेड क्रॉस के यहाँ पैट्रॉन है, क्लास भी लेते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ सिविल डिफेंस का डिप्टी चीफ है, सिविल डिफेंस का भी क्लास कराते हैं। साथ ही साथ हम कुछ लाइटनिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा, और लाइटनिंग में भी हम लोग इस सीपीआर को यूज करते हैं, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से भी आपने देखा होगा, साउंड एंड लाइट की वजह से लोग को जो प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगा, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था, डॉक्टर साहब इसको अन्यथा ना ले। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि उसका जो टर्म्स है, 30 का 22 30 27 30, ये ऐसे कर करके जो टर्म्स होता है, वो चीज भी अगर क्योंकि जब तक एक सीपीआर जो है, सीपीआर देने वाला जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर को अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अपने काम के बारे में प्रॉपर अगर जानकारी हो जाए, तो वो शायद बेहतर रूप से वो दे पाएगा, ये मुझे लगा, इसलिए मैंने बताया सर। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you. I not only got your questions correct, I think आप जो बोल रहे हो सारी चीज सही है। सबसे बड़ा चीज है, देखो ये जो फर्क आप बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो फर्क है वो बहुत ही कम है, लेकिन आप जो कर रहे हो वही सही है। सबसे बड़ा है आपको डरना नहीं, कुछ करना है। सर तो उसके बाद थोड़ा सा जो फर्क होता है वो फर्क मामूली सा है। आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो कि नहीं, आप जो आदमी आपका पास में है, आप जिसे इतने दिनों से, जैसे मिस्टर बनर्जी रेड क्रॉस, ये लोग ये जो सब चीज आप कर रहे हो, आज जैसे हम यहाँ पे बोलने के लिए मौका मिल रहा है, ये आप लोगों का तरीका। आप लोग में काम कर रहे हैं, आप और 10 लोगों को और 20 लोगों को और 100 लोगों को बोल रहे हैं, जैसे डरना नहीं। क्योंकि बाकी कोई कोई ऐसे भी बोलेगा, ये सब चीज करने का बाद भी बहुत लोग शायद बाँचेगा नहीं। लेकिन वो भी आपको बोलना पड़ेगा पहले से। देखो आप कुछ कर रहे हो, आप तो दिमाग से कर रहे हो, आपका अंतर से कर रहे हो, आप चाहते हो भला करने के लिए, लेकिन कोई कोई इसका बाद भी अच्छा नहीं होगा, वो यहाँ पे भी होगा। आपका मशीन भी हो, आपका इंट्यूबेशन हुआ, आपका एईडी भी हुआ, शॉक भी हुआ, उसका बाद भी हॉस्पिटल पे आने का बाद भी कोई कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपका आंसर को इसलिए दूसरी तरह से दे रहा हूँ, जो फर्क आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, इसका जो फर्क है वो बहुत ही मामूली है। आप 90 दे रहे हो, मैं 100 बोल रहा हूँ। एक बार कुछ दिन पहले और एक दूसरे आप लोगों को पता होगा, मिस्टर बनर्जी से हम सबसे पहले मिला, एक्चुअली शायद इंडिया का फर्स्ट टाइम ओपन ग्राउंड हम लोग मास सीपीआर अरेंज किए थे खड़गपुर में। तो उसके बाद जब Yes. मैं दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ का भी वो भी बहुत सक्सेसफुल था, बहुत बच्चे लोग आया, बहुत लोग। तो वहाँ पे एक आदमी आके पूछा, सर आप 100 बोल रहे हो, मैं तो पढ़ा 120 देने से काम अच्छा होता है। तो हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं बोला आप कभी ट्राई किया 120 टाइम्स? तो बोला नहीं मैं नहीं किया। मैं बोला 100 टाइम्स ही करना लोगों का मुश्किल होता है। जैसे मिश्रा जी आप बोल रहे हो, आपने कोशिश किया 100 टाइम्स, आपका तो देखने में लगता है आप थोड़ा स्ट्रांग है। आप सोचो मैं जैसे, मेरा तो शोल्डर ही इतनी है, तो मैं और मेरे से डबल कोई विक्टिम को ऐसे कोशिश करो 100 टाइम्स, कितनी देर तक कर पाएंगे हम नहीं, हॉस्पिटल मैं में? 100 नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नहीं नहीं कहना है ना नहीं, सर। आप फिर आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको आपको बोलना नहीं, आपका गलत है, मैं गलत, मैं बोल रहा हूँ आप 90 चाहो 100 चाहो 120, लेकिन मैं मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप करो तो सही।
इसका काउंट 90, 100, 120 का जो फर्क है वो मामूली फर्क है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ ये काउंट 20 सेकंड में 30 टाइम्स करो, ये बहुत मुश्किल रहता है, कौन काउंट करेगा उस टाइम, काउंट करना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात जो आप बताया वो भी सही है। मैं एक चीज आपको ये बता सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ 1 मिनट बाद बंद करके देखो, उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देगा। मैं बोल रहा हूँ बंद नहीं करना, क्योंकि कोई टाइम होगा 1 मिनट क्यों 5 मिनट या 7 मिनट में भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बंद करना ठीक नहीं। आपका साथ दूसरा कोई हो वो चेक कर सके, चेक करते रहे, जितना जल्दी देखे उसका ब्रीदिंग आपको लागे। लेकिन वही जो बात, ये कोऑर्डिनेशन इवन स्किल्ड पर्सनल के लिए, जो माउथ टू माउथ जब दे रहे हो तो अब ये बंद करो, और वो जब बंद करे आप साथ शुरू करो, ये कोऑर्डिनेशन भी बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए जब बोलता है, जब आपको डाउट है, जब आप नहीं कर रहे हैं, और जब आप जैसे आप सोचो जिसको हम इंट्यूबेट किया, जब इंट्यूबेट कर लिया तो अब ये कोऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं, वो तो ब्रीदिंग अपने आप करेगा, मशीन से करेगा, इसका बात नहीं हो रहा है। हम फील्ड का बात कर रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें डाउट्स है, तो आप चेस्ट कंप्रेशन देते रहो, इसका साथ साथ आपको लगे दूसरी कोई आया जिसका माउथ टू माउथ के बारे अच्छी तरह से जानकारी है, उनको पता है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें फायदा होगा। जैसे मैं बताया ड्राउनिंग चीज का हो, चोकिंग का हो, माउथ में सिक्रीशन हो। लेकिन मैं दूसरी टाइप का बोल रहा हूँ, जो अभी खेलकूद, एरिक्सन जब फील्ड में खेल रहा था उसका मुख में कुछ आके ब्लॉक किया, ऐसे चांस 0 है, क्योंकि वो तो खेल ही रहा था, उसका मुख में कैसे कुछ आ जाएगा। आप खा रहे थे, जैसे आपको पता होगा इंडियन एयर चीफ मार्शल जब फार ईस्ट में उनका था, उसका यहाँ पे ब्लॉक हो गया था, तो तब हमारा चीफ मिनिस्टर से मिस्टर डॉक्टर बिदन राय, वो बोला हाँ किसी का पेंसिल नाइफ होता तो वहां पे एक थोड़ा सा ऐसे कर देता तो जो मीट पीस उसका ब्लॉक किया, उसको जान बचा सकता था। तो वो बात तो है, डॉक्टर लोग करते रहता है, लेकिन आप कर सकोगे नहीं। तो उसी टाइम में भी जो आप कर सकते हैं ये कोशिश करो, उसका दूसरी करने का जरूरत है। जो कोई इसको डायग्नोसिस किया, उसका चोकिंग हुआ, उसका ट्यूब ब्लॉक हुआ, एयर ट्यूब ब्लॉक हुआ, उसका यहाँ पे भी थोड़ा सा एक कुछ काट करके जैसे हम करते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी आपका है तो जरूर, उसके बारे तो हम बता नहीं रहे। ये सारी मीटिंग का ये बात नहीं है, जो कोई स्पेशलिस्ट जो करता है हम जाके वो करें, वो करने का कोई जरूरत नहीं। फील्ड में चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं तो करो, उसके बाद कोई किसी का जानकारी हो जो दूसरा कैपेसिटी लेके आपका साथ हेल्प करे, जरूर करना। जो जब दिन आएगा आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हमारा जो एम्बुलेंस होता है, जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में जो एम्बुलेंस होता है, कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वो लोग इंट्यूबेट करता है। आप सोच भी नहीं सकते हो, वो लोग शॉक तो देते ही है, वो लोग इंट्यूबेट करता है, वो इंजेक्शन मेडिसिन सब कुछ देता है। लेकिन अब तो वहां पे कोई डॉक्टर भी, मैं आपको बता रहा हूँ हैदराबाद में हम लोग एक बार गया, एक डॉक्टर मुझे पूछ रहा है आप चाहते हो मैं चेस्ट कंप्रेशन दूं? मैं बोला अरे क्या बात कर रहे हो भाई, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? बोला नहीं, बाहर में डॉक्टर्स ऐसे लोगों को कुछ देना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को पता नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ये डिस्कशन का यही जरूरत है, आप जाके लोगों को बोलोगे चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर या दूसरी जो कुछ है, ये फायदा होता है, आप करो, आप सीखो और दूसरी किसी को सिखाओ। ये एक्चुअली हमारा ये डिस्कशन का है। थोड़ा सा जो फर्क होता है वो फर्क यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप भी गुड समैरिटन हो, आप किसी को हेल्प करो। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर मैं आगे बढ़ूं। प्लीज। जो दर्शक सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है सर। ये सेशन हम लोगों का सीखने का सेशन है, और मुझे जहां तक लगता है कि सर का जो टोटल अगर हम समरी कहें, अभी तक सर जो कुछ भी सर ने समझाया है, इसका एक ही मतलब है कि पहले आप इसको सीखिए। इसका सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आपको प्रैक्टिकली ये सीखना होगा, मैनेजिंग पे प्रैक्टिस करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम लोगों को सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए, किस व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता है, सचमुच उसको सीपीआर देना है या नहीं देना है, माउथ टू माउथ चेस्ट कंप्रेशन ये बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस व्यक्ति को सीपीआर देना है। ये वो व्यक्ति है जिसे सीपीआर दिया जा सकता है।
आपको अगर ये पता नहीं है तो आप बाकी सारा टेक्निक सीख के कुछ फायदा नहीं है। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई एक्सपर्ट नहीं होगा जो आपको ये गाइड करे कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, डू दिस, डू दिस। तो आपको ये पहले सीखना होगा। मिस्टर दयाशंकर, मैं आपको बता रहा हूं कि 30 साल का अनुभव मेरा भी है इस क्षेत्र में। आप जहां जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, मैं जमशेदपुर, इंडियन ऑयल, इसके बाद बीपीसीएल, इसके बाद रांची, इसके बाद लातेहार, जो बिल्कुल आपका नक्सली एरिया है, वहां तक मैं गया हूं और लोगों को हम लोगों ने सिखाया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मिस्टर अनिरुद्ध दे का परमिशन लेके मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि सर, अगर हम लोग इंडिया में हैं, जो हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ग्रुप में कभी कभी इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं, अगर आप लोगों को जरूरत हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तापस सर के साथ एक मास सीपीआर ट्रेनिंग में खड़गपुर में था। बहुत सारे लोग थे, एक पहली मुलाकात थी हम लोगों की, और बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिकली पहले इसको सीखना होगा। दूसरी बात है कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर हम लोग कभी कभी इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करें, कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करें, तो वो बेटर होगा। चलिए सर, मैं अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है कि समय भी अब बहुत कम बचा है हमारे पास, और सारे प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसका उत्तर भी मिला होगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सीपीआर जानते हैं, लोगों को पता होता है, माउथ टू माउथ चेस्ट कंप्रेशन लोगों को पता होता है, फिर भी लोग, स्पेशली जब हम लोग किसी ऐसे जगह पे होते हैं जो पब्लिक प्लेस होता है और वहां किसी को इस तरह की इमरजेंसी होती है, तो लोग सीपीआर देने से डरते हैं, या लोग सीपीआर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कल इसके बाद फिर उनको हैरेसमेंट हो सकता है, एजेंसीज या पुलिस वगैरह जो है उनको जो है हैरास कर सकते हैं। तो क्या सर ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है जिसके सहारे हम ऐसे आम आदमी को आश्वस्त कर सकें कि आप कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि आप कीजिए, आप लोगों की जान बचाइए, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहां तक मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का ये एक वर्डिक्ट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी इमरजेंसी में लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो नॉर्मली जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसको हरास करने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। एकदम तो सर, एकदम, बट अगर आप इसके ऊपर कुछ कहें। नहीं, आप तो क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छी तरह से आंसर भी दे दिया। इसको हम गुड समैरिटन लॉ कहते हैं। दुनिया का कोई सारी देश में, हमेशा मैं सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज का रूल्स बता रहा है, लेकिन आप इंडिया का बड़े अच्छी तरह से बता दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट में ये भी बताया, जो व्यक्ति इनको हेल्प करने के आया, हेल्प किया, उसका आइडेंटिटी भी किसी को डिस्क्लोज ना करे, पुलिस उसको नहीं बुला सकता है, वो खुद जाके बोले तो नहीं बोले। और ये बात सारी लोगों को बताना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जिनको पता नहीं, वो तो सबसे पहले सोचेगा। मैं आपको ये इसका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, हेजिटेशन जो है, जहाँ पे लोगों को लॉ का बारे पता भी है कि गुड समैरिटन लॉ आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको हरास नहीं किया जा सकता है, लेकिन करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन किया नहीं जा सकता है, जिस सारी दुनिया में ही होता है। जैसे आप लोग तो कभी कभी घूमते हो, जैसे हमेशा मैं जाता हूँ प्लेन में, तब वहाँ पे कौन रूल अप्लाई होगा? इंडिया का होगा, कनाडा का होगा, और जब वो मिडिल ईस्ट में जा रहा है, मिडिल ईस्ट का रूल एप्लीकेबल होगा। एक्चुअली सारी दुनिया का जब स्पेस का होता है, एयर और वाटर में, वहाँ पे भी गुड समैरिटन लॉ होता है, जैसे आपको प्रोटेक्ट करे। लेकिन आपको तो ये आंसर आपको पता है, जो कर रहा है आपको पता है, ये एक्चुअली सारी जनता का भी, कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए। जे ये हमें फर्स्ट तो करना, जैसे दयाशंकर जी को नाम ही मैंने ले रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हो, सबको करना है। ये बाकी लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोगों को सिर्फ
करना होता है अच्छी तरह से, लेकिन जितनी सारे लोग ये जानते होंगे, जितनी सारे लोग इसका जानकारी में होंगे, सबसे पहले जैसे एक कमेंट में काफी बार है, आप करो ये जरूरी है, दूसरी है आप जानो तो करो जरूर है, तीसरी है जो करने चाहते हैं उसको करने दो। ये सबसे पहले इंडिया में अभी बड़ी जरूरत है, क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं। जैसे कोई पेशेंट, कोई मरीज हॉस्पिटल में हो तो 100% डॉक्टर को तो ये करना चाहिए। तब भी कोई पेशेंट जो ऐसे डाइंग कंडीशन में है, कोई डॉक्टर इसको करने जाए, उनको घर का आदमी आके बोलेगा देखो भाई ये तो कुछ हो रहा था मेरे ये रिलेटिव को, लेकिन डॉक्टर क्या किया पता नहीं, उसके बाद तो मर गया। तो इसीलिए ये जानकारी होना चाहिए सबको। इसीलिए जैसे हम बोल रहा हूँ जे कब करना जरूरत है जैसे, लेकिन जरूरत जो है करो, बाकी लोगों को बोलो जो जाने उसको करने दो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ये क्वेश्चन का दूसरी एंगल में आंसर करने चाहता हूँ। आपको पता होगा जैसे यूरोप एवं नॉर्थ अमेरिका मोर देन 60 कंट्रीज में ये जो एम्बुलेंस भी बहुत एडवांस्ड होता है, सभी को CPR पता होता है, लेकिन आप फिर भी ये सुन के दुखी हो जाओगे कि इवन अमेरिका में भी 50-60% लोग जिनको अच्छी तरह से पता है फिर भी CPR नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ डर के लिए नहीं, हेजिटेशन होता है। और इंडिया में तो अभी भी 10% लोगों को पता नहीं, तो कैसे, तो ये 10% का कितना लोग जाके एक्चुअली अच्छा ये इसका एग्जांपल मैं अभी सब लोगों को पता होगा, ये ज़्यादा दिन का बात नहीं है। इच्छापुर जो राइफल फैक्ट्री में एक आर्मी का अंदर जो रीजनल हो रहा था, बिल्कुल सर। उसमें मैं एक बांग्ला में एक वीडियो भी, छोटा सा वीडियो बनाया था। जो लेडी वो टेबल टेनिस कंपटीशन में चैंपियन हुई थी। तो टेबल टेनिस तो इतना इंटेंस एक्टिविटी नहीं है, जैसे फुटबॉल जैसे इतना इंटेंस तो नहीं होता है, लेकिन द लेडी वाज प्लेइंग फ्रॉम द मॉर्निंग, क्योंकि उसका इनिशियल तो जैसे जस्ट लीग टाइप का होता है, और उसका फाइनली जो नॉकआउट में, एंड सी स्टार्टेड डूइंग वेरी, एंड सी पॉसिबली प्लेड मोर देन 12 मैचेस। तो इतनी सारी गेम खेलने का बाद उन्होंने कंपटीशन जीतने का बाद जब वहीं पे बोल रहा है मेरा कुछ हो रहा है एंड गिर गया, तब भी कोई लोग आज के आके उसको चेस्ट कंप्रेशन, CPR मदद कुछ नहीं दिया। एंड जब वहाँ पे नेक्स्ट हॉस्पिटल में लेके गया तब उनको डिक्लेयर किया शी इज डेड। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, जो जितनी सारी, अभी तो हम स्टॉप करेंगे आज, दूसरी टाइम फिर आपका भी हम वापस आएंगे। और जैसे संजय सर बोला ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है, हम खुद कोशिश करें। लेकिन उसी दिन आप सोचो, वही बारासात में मैं पहले भी किया था, तो कोई लोग शायद वहाँ पे पूछा हम उनको चेस्ट कंप्रेशन दें, उसको हम कुछ कोशिश करें, बाकी लोग सोचा नहीं नहीं भाई वो तो लेडी है, फर्स्टली, सेकेंडली है किसी को क्या होगा पता नहीं, कि ठीक है वो मर जाता है मरने दो, लेकिन कुछ करना नहीं। ये चीज चेंज करना है। आप लोग जो आज यहाँ पे हाजिर है, यहाँ पे अभी भी 50 लोग हैं, तो जितनी सारी सुना, आप जाके एटलीस्ट 10 लोगों को आज ही बोलो जिस CPR जैसी चीज क्यों की जरूरत है, क्यों बाकी लोगों को करना है, बाकी लोगों को जानना है। जैसे अभी कभी जरूरत हो, कोई करने चाहता है उसको करने दे, मैं जानूं तो मैं करूं। मैं एक्चुअली टाइम नहीं है इसलिए एक दूसरी क्वेश्चन है इसमें, मैं आई एम वेरी सॉरी टू हियर, जैसे पार्थ वर्मा जी ने बोला व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव माय ओन कार्डियक अरेस्ट एंड नो वन इन दिस। अनफॉर्चुनेटली पार्थ वर्मा जी, जब आपका कार्डियक अरेस्ट होगा, सो अनफॉर्चुनेट, आपको करने का कुछ मौका नहीं है। कार्डियक अरेस्ट जिसका हुआ, मैं जैसे काफी बार बताया, आज ही काफी बार बताया, उन लोगों का दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, वो गिर गया, वो उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उनका कुछ करने का कोई चांस नहीं है। जिनका कार्डियक अरेस्ट हुआ उसी टाइम, एक्चुअली बोलने में खराब लगता है, लेकिन एक्चुअली उसको कुछ नहीं किया, मतलब वो मर गया। तो कार्डियक अरेस्ट जो आदमी का हुआ, उनको अपना कुछ नहीं करना। आपको, आप लाकी हो तो साथ में कोई हो, कोई आपको देखे ऐसे हुआ, वो लोग कर सके। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आज क्या कर सकते हो, आप दूसरी आदमी को, 10 आदमी को, 20 आदमी को आज सिखा सकते हो। जैसे जरूरत पड़े अपना घर का, अपना खुद कुछ कार्डियक अरेस्ट हो, दूसरी कोई आपको हेल्प करे। सर थैंक यू, धन्यवाद सर आपको। और कोई आपने कोई एक इस हैंड रेज किया हुआ है।
किसी बिल्कुल का सर, मैं बिल्कुल। काफी देर से देख रहा हूँ, तो किसी ने हाथ उठाया है, Kindly go ahead. तो उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। Kindly go बिल्कुल ahead. सर, बिल्कुल पूछिए सर, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हेलो, आपने हाथ उठाया, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और सवाल नहीं है तो अ, बहुत ही अच्छा मतलब डिस्कशन रहा। इसमें एक बात ये है, सर का जो लास्ट का जो कहना था पार्थो वर्मा जी के लिए, तो जो सवाल जवाब जवाब उन्होंने दिए हैं, तो इसका असली मुद्दा ये है बिहेवियर चेंज, कि ये एक कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो कल्चरली अप्रोप्रिएट तो है नहीं, तो हम लोग बिहेवियर चेंज का जो इशू है, बिहेवियर चेंज तो हम लोगों का होता नहीं है, तो काफी टाइम लगेगा, लग जाएगा। तो ये एक बात है। अच्छा, तो अनिरुद्ध सर, यस, यस, अनिरुद्ध सर, यस, सर अगर आप अनुमति दे तो मैं एक अपनी तरफ से एक सुझाव, एक सजेशन रखना चाहता हूँ। यस, प्लीज प्लीज। सर, मुझे लगता है कि तापस सर हमारे साथ हैं और ऑडियंस भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं। तो मेरा जैसा अनुभव रहा है कि तापस सर ने लास्ट टाइम एक बार हम लोगों के साथ एक मास सीपीआर का प्रोग्राम किया था। और सर जब दार्जिलिंग आए थे तो मैंने कोऑर्डिनेट किया था। अभी जो दार्जिलिंग में एचएमआई है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ मेरा काफी अच्छा दोस्ताना संबंध है। और आप वो हमारे यूनिवर्सल ईएचएस ग्रुप में भी हैं। तो मैंने कोऑर्डिनेट करके सर का प्रोग्राम वहां भी करवाया था। तो क्यों ना हम लोग नॉर्थ बंगाल में एक मास सीपीआर का प्रोग्राम करें, जिसमें प्रैक्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें सीपीआर होगा और वो प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को सीपीआर देना है, कब सीपीआर देना है। अगर हम लोग इसको कर सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि खास करके हमारे नॉर्थ बंगाल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आप सर से कोऑर्डिनेट करके इस तरह का एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ मास सीपीआर का कर सकें। संजय दा, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। और आपको आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कार्नेपी का सेक्रेटेरिएट प्रिज्म है। तो प्रिज्म का नॉर्थ बंगाल में भी एक कैंपस है, जल्दापड़ा के एकदम बगल में, 1 किलोमीटर दूरी में। बिल्कुल और वहां पे बिल्कुल। एक हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें 30 लोग पार्टिसिपेट किए थे, और सर ऑनलाइन ही ट्रेनिंग कराए थे। तो जो आपका जो सुझाव है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं इसको और स्प्रेड करने के लिए। और जो मैं बिहेवियर चेंज का इशू कहता हूँ, जितना स्प्रेड होगा उतना ही बिहेवियर चेंज जल्दी जल्दी से जल्दी वो होना हो सकता है। होगा, हो पाएगा। बिल्कुल सर। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों का 7:30 टाइम था, 7:47 हो चुका है, क्या हम लोग और कंटिन्यू कर सकते हैं? सर, अभी देख रहा हूँ कि 45 45 पार्टिसिपेंट्स है। तो अभी और कितना देर? ओनली। हाँ, 45 पार्टिसिपेंट्स ओनली है। तो अभी कितना देर करेंगे? या तो आज हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि आ, ये एक हेटेरोजेनियस ग्रुप बना है। हेटेरोजेनियस ग्रुप में कोई किसी आदमी को चाहिए था इंग्लिश में, किसी को चाहिए था बांग्ला में, किसी को चाहिए था हिंदी में। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में ही चल जाए, क्योंकि ना बिल्कुल बांग्लादेश से 12 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए थे, तो उनके लिए बिल्कुल। प्रॉब्लम होता था। तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसको हम बांग्ला भाषी लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम रखेंगे, और हिंदी और इंग्लिश के लिए जो प्रोग्राम आज किया, ये तो किया। इसके बाद अगर कोई जरूरत है तो हम दोबारा सोचेंगे। ये हम स्फेयर इंडिया बिल्कुल अकेडमी के सर, साथ बातचीत करेंगे। एकदम एकदम बिल्कुल सही सोचा है सर आपने। बिल्कुल सही सोचा है सर आपने कि अलग अलग भाषा में अगर हम लोग पर्टिकुलर भाषा में करें तो वो बेहतर होगा।
क्योंकि हिंदी में जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में सेशन करेंगे, जो बांग्ला में सुनना चाहते हैं उनको बांग्ला में, और जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनको इंग्लिश में सेशन करेंगे। तो अगली बार ठीक है सर, आप हम लोग हैं साथ में, हम आपके मदद के लिए हैं। और सर तो क्या हम लोग इसको क्लोज करें? हम लोग अभी इसका क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ना 7:50 सर के आसपास हो गया। तो सर प्रैक्टिकल अगर कुछ दिखाना सर आप चाहते वोट हैं, ऑफ थैंक्स दें। हाँ वोट ऑफ थैंक्स तो देंगे। तो सर प्रैक्टिकल कुछ दिखाना है, या तो तपस सर से पूछ रहा हूँ कि अभी क्लोज कर दूं? प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैं दिखाने में जो वीडियो में भी ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन जैसे संजय सर ने बोला, बाकी सारे लोगों ने भी यही सोच रहा है, उनको करने का मौका मिलना चाहिए। मेरा पहले सारी प्रोग्राम में, इंक्लूडिंग मासिपियर प्रोग्राम में, आप लोगों को जिन लोगों ने किया पता होगा, हमारी सारी बाकी लोगों का वॉलंटियर्स का मौका में सारी लोगों को खुद करने का मौका मिला। ये खुद नहीं करते हैं तो आप उसका फ्लेवर जो है, उसका जो डिफिकल्टीज जो है, उसका जो प्रॉब्लम आती है करने में, वो पता नहीं चलेगा ऐसे मैं दिखाने में और मैं बोलने में और इवन वीडियो देखने में। इसीलिए मैं तो इंसिस्ट ही करता हूँ, ये जानकारी जरूरत सबसे ज्यादा है। जैसे ये लोग आप देख रहे हैं, अब मित्र जी, अभी उनको मैंने देखा, दूसरे ग्रुप में भी देखा, आप लोग सारी एक्टिव है। मैं तो ये खुद बोलता हूँ, मेरा काम तो कम है, आप लोगों का एक्चुअली यहाँ पे मौका एवं काम, रोल ऑन बहुत ही ज्यादा है। लोगों को समझाना, लोगों को साथ में लेना, ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो बहुत मुश्किल होता है। बोलना आसान रहता है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना और उसको साथ में कॉमन पीपल को लेके जाना मुश्किल रहता है। जैसे मिस्टर दे ने बहुत अच्छी तरह से बताया, ये जो अनुभव और उसका बाद जो कल्चरल बैरियर सारा दुनिया में है, ये तो टाइम लगेगा ही। तो ये प्रोग्राम का ज्यादा जरूरत है। मैं अभी अब यहाँ पे दिखाने के लिए ये इसलिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लोर में जाके एक बार दिखा सकता हूँ कैसे करता है, लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकता हूँ, लेकिन उसमें शायद जो लोग यहाँ पे हैं उनको अच्छी तरह से अलग से कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो में हम लोग ये अच्छी तरह से दिखाया। ये थोड़ा कैमरा को चेंज करना भी थोड़ा सा मुश्किल। आप लोग फ्लोर देख रहे हो, आप चाहते हो मैं दिखाने में आपको फायदा हो तो मैं दिखा सकता हूँ, आपको क्या नहीं लगता है? सर, एक बात ये है कि इसमें एक चीज को हम तय कर लेते हैं कि हम वो वीडियो भी सबके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि ना हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टाइम में उनका फोन नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो ओके, उनको हम इसका जो आज का सेशन का यूट्यूब वीडियो तो दे देंगे, इसके साथ साथ जो हम लोगों का प्रैक्टिकल जो सेशन का, उसका भी वीडियो हम शेयर कर देंगे। आई थिंक वही अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरा ऑफिस रूम इतना छोटा है, यहाँ पे दिखाना अच्छी तरह से नहीं, मैं दिखाया था पहले बार, लेकिन ये कोई अच्छी, इतना कोई अच्छा नहीं होगा जैसे सिर्फ ये पे कुछ अलग तरीका से दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये आ रहा है, मैं सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ लेकिन सुनाई तो दे रहा है, हाँ। लेकिन दिखा नहीं, दिख रहा है ना? अभी अभी दिख रहा है? सर अभी थोड़ा सा राइट साइड में ले लीजिए। एक- हाँ बस बस बस, अभी दिखेगा। है ना? हम्म, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिख रहा है। हाँ जी, हाँ चलो यहाँ पे, हाँ, हाँ जी, दूसरी, हाँ एक कैमरा में तो दिख रहा है, यहाँ पे हाँ अभी दिख रहा है अभी ये वाला। दिखेगा, हाँ। तो सबसे पहले ये जरूरत होता, जे कोई ऐसे गिर गया, जो आपके साथ में था, आपका शायद कलीग या कोई कम्यूट में था, तो गिर गया, तो उसको सबसे पहले जाके पूछो क्या हुआ, आप ठीक हो, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? तो उसी टाइम जैसे कोई बार ये बात आया, जो वो आदमी रिस्पॉन्ड करे, वो मूव करे, रिस्पॉन्ड करे, हाथ दिखाए, उसको सीपीआर देने का जरूरत नहीं। जो बात हम पहले किया, इसी व्यक्ति को आप धीरे से थोड़ा सा साइड करके दे सकते हो, उसका थोड़ा माउथ क्लीन कर सकते हो, उसका थोड़ा साइड में रखो, इसी व्यक्ति का पैर थोड़ा सा ऊंचा करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ उसका थोड़ा साइड करके सुलाओ, जैसे मुख में इसी टाइम कुछ आए तो उसका मुख से वो निकल जाए।
ऐसे करके उसका थोड़ा ड्रेस ढीला कर सकते हो, टाइट कोई बेल्ट पे बना होगा वो ढीला कर सकते हो, उसका सोने दो, उसका थोड़ा और फिर भी उनको लेके जाओ, ये जरूरत ज्यादा होता है। मिस्टर जी और दूसरी लोग जो सिंपल फेंटिंग या वेसोवेगल का बात कर रहा हूँ आप, जिसे आपको सिर्फ थोड़ा सा चक्कर आ गया, ये बहुत कॉमन होता है। इसमें ये लोग फिर भी आराम में आ जाता है, ठीक हो सकता है। मैं बता रहा हूँ बहुत एथलेटिक लोगों को भी ये हो सकता है, लेकिन ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है। इसका बावजूद भी ये बंदा अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे हम दिखा रहे हैं, ये जो आपका नकल होता है हाथ का जो, उसको आप कोई चीज पे थोड़ा सा पेनफुल होता है, कोई कोई ऐसे बोलता है थोड़ा सा पिंच कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल होता है, और ये पेनफुल होगा तो शायद इस बार वो आदमी रिस्पॉन्ड करेगा। फिर भी उनको चेस्ट कंप्रेशन या कोई सीपीआर देने का जरूरत नहीं है। उसको आराम पे रहने दो, उसको थोड़ी देर सोने दो, उसका थोड़ा देखभाल करो। हॉस्पिटल शायद जा सकते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाए, वो थोड़ा उसको बोलो कुछ करने का नहीं, 2-4 मिनट देखो कैसे फील हो रहा है। लेकिन ये जो हम इतनी धीरे से बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने देखा फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप उसको ऐसे पेनफुल दिया स्टिमुलस, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई कोई बोलता है जैसे ऐसे यार में पिंच करो, उसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब अभी टाइम नहीं है, अभी आपको कुछ ना कुछ करना है। हेल्प मांगो, कॉल फॉर हेल्प, कोई है प्लीज आ जाओ, मदद करो। ये लगता है ये आदमी का कुछ सीरियस हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो इसी टाइम बाकी लोग जब आ रहे, आप एक क्वेश्चन हमेशा आता है कितनी देर वेट करे और क्या करे, कुछ वेट करने का बात नहीं है। अपना दोनों हाथ के एक साथ रख के ऐसे चेस्ट के एकदम साइड में, ये देखो हमारा जैसे पूरा नी तो हिप स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से जैसे शोल्डर, जो हमारी शोल्डर का ये पूरा हाथ एल्बो में स्ट्रेट रहेगा, इसका ऊपर मैं दबा रहा हूँ अपना वजन। ये प्रैक्टिकल चीज है, कॉमन सेंस का बात हो रहा है। अभी मेरा हाथ देखो, एक ही जगह में जैसे मेरा वेट जाए तो इजी रहता है उसको चेस्ट दबाना। हम क्या बताया उसमें, ये जो चेस्ट है उसका अंदर एटलीस्ट उसको हाफ कंप्रेस करना है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विथ, तो वैरी करेगा, छोटा बच्चा जाए वैसे हो तो उसको धीरे से करने से वो कंप्रेशन हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रांग होगा मस्कुलर बॉडी होगा उसको जोर से प्रेस करना होगा। इसको अभी देखो, ये अभी चलते रहेगा ऐसे करके, दूसरी कोई आके हेल्प ना करे तो आप जितना देर सकते हो ये करते रहो। दूसरी कोई आया तो उसी टाइम आप दूसरी हेल्प लो, तो आप हेल्प मांगा, आप किसी को फोन किया और दूसरी कोई नहीं आया, तो ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी कोई नहीं आया तो आप चेस्ट कंप्रेस करते रहो, वो इसी टाइम रिस्पॉन्ड आ गया तो आप लाकी हो। वो मूव करके बोला, ऐसे भी हम ये करके अभी खत्म करते हो थोड़ा सा जोकिंगली, ये हॉस्पिटल में हुआ, ये मैकमास्टर के हॉस्पिटल में हुआ, ऐसे करके एक बंदे से गिर गया, तो हमारा एक फेलो था सीनियर, को भी एक्सपीरियंस है, वो जाके ऐसे शुरू किया तो इमरजेंसी में वो बंदा उठ के बोला आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो डर गया तो उसको मारा एक पंच, तो फिर दोनों में फिर दोनों बाकी लोग आगे सारे लोग हंसते रहे। मतलब इसी होना चाहिए कि उसी टाइम जो ये शुरू किया वो भी ठीक किया, जो ऊपर ऐसे जिनका जान बचाया सोच लो, शायद उनका जरूरत भी नहीं था, वो भी हो सकता है, लेकिन इसी टाइम ये चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना, कंटिन्यू करना जरूरत है। बाकी लोग आ गया, जैसे दूसरे लोग आके बोले चेक करे, हाँ लग रहा है इसका कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, उसका इंट्यूबेट करना, माउथ टू माउथ करना, वेंटिलेट करना, जो कुछ करना है बाकी लोग आके हेल्प करे तो जरूर करना। और ये देखो, ये जब एक गिर गया इतना ऐसे मामूली सा सॉफ्ट ये लग रहा है चेस्ट, तो मैं आराम से कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होगा तो मैं 1 मिनट में टायर्ड हो जाऊँ। इसीलिए हम जब सिखाते हैं दूसरी साइड से, एक तरफ मैं बैठा हूँ, दूसरी तरफ और एक सपोर्टर वॉलंटियर जो है और रिससिटेटर उधर बैठे हुए, उसको हम बोले कि अभी आप ले लो, मैं और नहीं कर पाता हूँ, मैं टायर्ड हो गया, तो दूसरी आदमी जब आज साथ साथ शुरू करे, जैसे इसमें कोई गैप ना पड़े, इसीलिए हम लोग माउथ टू माउथ के बारे में Sir, बात what कर to रहे do if the patient is a lady? हैं। Sorry, say that again. Sir, what to do in case the victim is a lady? Because we have to be very careful. One has to be very sensitive. राइट, सो आप लोग ये जो अभी अभी कितने लोग पहले ज्वाइन किया था पता नहीं कम हो गया, कितनी लोग लेडीज थे, दैट्स व्हाई हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है
जो वुमेन जो विक्टिम होता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए अगेन सोसाइटी का बात हो रहा है। जैसे मिस्टर दे ने बात किया, फाइनली इट बिकम्स ए सोसाइटी प्रॉब्लम, राइट? सो देयर इज नो डिफरेंस। आपने पता हुआ, आपने नोटिस किया होगा, अभी तक मैं कभी बताया नहीं कि इनको कोई क्लोथ्स रिमूव करना है, उनको जाके चेस्ट चेक करना है, ये तो करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो लेडी हो या जेंट्स हो, कुछ फर्क नहीं होता है, रेट का बड़े पता नहीं होता, फर्क नहीं होता है, चेस्ट कंप्रेशन का फर्क नहीं होता है। और हम लोग दे रहे हैं एकदम का जो सेंटर पार्ट है वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे देने का कुछ अंतर नहीं होना चाहिए, कुछ एक्चुअली फर्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो वुमेन फोक्स जहाँ पे हो, इस ग्रुप पे हो, जैसे मैं काफी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश का जो लोग ये हो गया, आपको पता होगा बांग्लादेश का एक नर्सिंग कॉलेज में हमने सीखा, वहाँ पे सारी लेडीज थे। तो भुवनेश्वर में भी एक स्कूल था, वहाँ पे बहुत गर्ल्स थे। तो जैसे आईआईटी खड़गपुर में हमने पूछा, गर्ल्स लोगों को पार्टिसिपेशन जैसे दुनिया का मिडिल ईस्ट या एशिया में ये कल्चरली और भी बैरियर है, काफी तरह से बैरियर है। आपका हेजिटेशन का बैरियर, कल्चरल बैरियर, आपका नॉलेज इग्नोरेंस का बैरियर, एंड सबसे बात तो ये रहता ही होगा कि जहाँ पे जेंट्स और वुमेन का फर्क होता है, उसी टाइम ये फील्ड में एक लेडी का बहुत ही जरूरत होता है, जो आके बोलेगा इनका भी ये करना जरूरत है, मैं कर रहा हूँ, आप साथ में दूसरे लोग हेल्प करो। इसी टाइम जेंट्स लेडीज का कुछ फर्क नहीं। तो मुझे पता है जे जहाँ पे ऑनर किलिंग हो रहा है इस दुनिया में, जे हमारी फैमिली का कोई कुछ किया तो उसको खुद उसका फैमिली लोग जाके किल कर देता है। जो सोसाइटी में वो लोग चाहता नहीं जो कोई अनजान लोग आके इनका चेस्ट कंप्रेशन करे, उसको टच कर दे, वो लोग चाहे नहीं। जिस दुनिया में वो आप बात करें वहां पे तो ये करने का जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ पे नॉलेज का जरूरत इसीलिए होता है, इवन आज का दुनिया में 200 साल पहले भी था, इसीलिए हम बात करते हैं। इसीलिए जो लोग आज यहाँ पे बैठे हुए, जो लोग ये सुनते रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको होता है। आप सारी अपना घर में आपका बहन को, आपका स्टूडेंट को, अपनी जिसकी जानकारी उन लेडीज को भी बोलना है जी आप प्लीज। एक बार जादवपुर में एक फैकल्टी मुझे पूछी, एक लेडी, जे मैं तो ऐसे बैठ नहीं सकता डॉक्टर साहब, आप मैं क्या करूं? तब मैं उनको बोला, देखो आप कम्यूट कर रहे हो एक दिन ट्रेन में, ऐसे किसी को हुआ और वो लेडी हो, आप जाके ऐसे 2-4 यंग बंदा कोई जिनको चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर पता होता है वो कर रहे हैं, आप जाके बोलो ये भाई वो क्या कर रहा है मुझे पता है, उनको करने दो, वो जो कर रहा है ये सही है, आप भी आके ज्वाइन करके उसको करो। ये विक्टिम लेडी है ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो जो कर रहा है ये इसी टाइम वही करना चाहिए, ये जरूरत होता है सोसाइटी में। तो इसीलिए हमें वुमेन फोक्स का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैं आप दोनों सारी, मैं वहाँ पे चेक नहीं किया अभी कितनी है, थैंक यू लेकिन सर। नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी ठीक है, एक्चुअली मैं तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं तो एटलीस्ट जल्दीबाजी में निकाल नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरा काम रात पे भी था, अभी मेरा काम शुरू होगा। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ, इतनी सारी इंटरैक्टिव डिस्कशन तो बहुत ही ज़रूरत था, यही इम्पोर्टेंट है इसी स्टेज में हमारी, जब नॉलेज अवेयरनेस चल रहा है, नॉलेज ट्रांसलेशन में ये सबसे जानकारी का सबसे बड़ा ज़रूरत होता है हमारी अपने खुद ग्रुप का, तो जैसे आप बाकी दूसरी लोगों को ले सकते हैं। ओके सर, हमारा 1 घंटा का सेशन 1.5 घंटा में पहुंच गया, तो हम इससे पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो मैं स्फेयर इंडिया एकेडमी की तरफ से हाना है, तो हाना को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। और कान एशिया मैंने क्लाइमेट एक्शन रिसोर्स नेटवर्क एशिया पैसिफिक के तरफ से मैं आप सभी को जितना पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन किए थे, आप एज द रिसोर्स पर्सन आपको और संजय दा को दोनों को ही हम बधाई देना चाहते हैं, और हाना को कहते हैं अभी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, और देके इसको समाप्त करें। थैंक यू। या हाना। Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah. Thank you so much. And I just want to mention that Hana, something happened.
We can't hear you. Can you hear me now? Yeah, yeah, yeah. Am I audible? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So I was mentioning that today's session was very informative, and especially the practical part. And thank you so much, Mandal sir, for explaining each and every query very clearly. And also, I would like to thank the moderator, sir, Mr. Banerjee. Thank you so much for very effectively moderating and catering to all the questions that was asked today. And especially, I would like to thank all the participants who came here and stayed. I know it's a bit late hour in India, but thank you so much for staying with us. And I hope that today's session was very informative to all of you. And as it was previously mentioned, the whole session is being recorded and we will be putting it up in the YouTube so we can reach out to more people. And I hope more sessions like this will be conducted. And also, I would like to extend one last thank you to Dr. Aniruddha for organizing and being the main helping hand behind organizing this session. Thank you so much, Dr. Aniruddha. And so with that, once again, thanking the speaker and the moderator, I would like to close today's session. Thank you so much, everyone. Thank you. Namaste to all of you. This was a very nice session, and I must thank again to all of you after Hannah, and now we will close the session. Thank you.